Good morning, students. In our physics class, in last lecture, we study about the universal law of gravitation. Today, we will solve some numerical problem based on gravitation. Now, let's start. Question number 1. Find the gravitational force between two objects of mass 1 kg each separated by a distance of 1 meter. Dear students, जब हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होता है कि हमें क्वेश्चन में क्या वैल्यूज गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है और उसके लिए हम क्या फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या वैल्यू हमें गिवन है। तो नाउ वी हैव द टू ऑब्जेक्ट of mass 1 kg each, that is m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 1 kg, and the distance between them, that is r is equal to 1 meter. Now find out, हमें क्या फाइंड आउट करना है? द वैल्यू ऑफ f. फॉर्मूला यूज, इसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? तो देन वी हैव द फॉर्मूला f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r square. Now in this question the value of g is not given. The universal force constant and the value of g is standard, that is g is equal to 6.673 into 10 raised to the power minus 11. तो हम इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो नाउ अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो f इज इक्वल टू g, तो हमारे पास g की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10 पावर माइनस के 11। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ m1 दैट इज 1, द वैल्यू ऑफ m2 दैट इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर। r हमारे पास कितना है? 1। तो देन हम क्या करते हैं? 1 का स्क्वायर कर देंगे। नाउ solve these question values. So then we get f is equal to 6.673 into 10 raised to the power minus 11 Newton. That is answer of our first question. Now second question. Find the force of gravitation between earth of mass 6 into 10 raised to power 24 kg and an object of mass 1 kg and the radius of earth is 6.4 into 10 to the power 6 meter. तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उनको यूज करना है। तो हमारे पास m1 कितना है? दैट इज 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24। नाउ m2 हमारे पास कितना है? 1 kg एंड द वैल्यू ऑफ r, और r इज गिवन बाय 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है? फोर्स। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स। नाउ अप्लाई द फार्मूला F इज इक्वल टू हमारे पास क्या फार्मूला है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ F जी एन m1 m2। तो g की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है हमारे पास? 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11। The value of m1 is
6 into 10 to the power 24 kg. The value of M2, that is 1. The value of R, that is 6.4 into 10 to the power 6 meter. Substitute this value. Then we get the value of R square. इसके लिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं. Now calculate this value. So then we get 0.98 into 10 or 9.8 Newton. That is the answer of our question number 2. Now question number 3. Find the force of gravitation between the earth of mass 6.10 raised to the power 24 kg and the moon of mass 7.4 into 10 to the power 22 kg. And the distance between them is 3.84 into 10 to the power 5 kilometer and the value G is given 6.7 into 10 to the power minus 11. तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है? m1 की वैल्यू कितनी है? मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 into 10 to the power 24 kg. Mass of moon that is हमारे पास कितना है? 7.4 into 10 to the power 22 kg. And radius r, which is given by 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर. नाउ ये वैल्यूज हमारी किलोमीटर में, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे बाय मल्टीप्लाई ऑफ 1000. जब इसको 10 टू पावर में लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 टू पावर 8 मीटर. नाउ हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? द वैल्यू ऑफ फोर्स, दैट इज हमें फाइंड आउट करना है फोर्स. तो देन अगेन हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं. F इजिकल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर. नाउ F इजिकल टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ G, और G की वैल्यू हमारे पास इस बार गिवन है 6.7 into 10 to the power minus के 11. तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको. वैल्यू ऑफ m1, the value of m1 is 6 into 10 to the power 24. The value of m2, that is 10 to the power 22. Now substitute the value of R, and the value of R is 3.85 into 10 raised to the power 8. That is now R square. Now solve these value. So then we get 20.2 into 10 raised to the power 19. That is 2.02. स्टूडेंट्स, फिजिक्स में हम पहले दो अंकों के बीच में पॉइंट लिखते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, इसको जब हम रिप्लेस करते हैं तो हमारी जो पावर है वो एक पॉजिटिवली बढ़ जाएगी. तो 19 से हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई? 20. दैट इज द वैल्यू ऑफ F and the unit is Newton. This is the answer of our question number 3. Now
Find the force of gravitation between the Earth of mass into 6 into 10 raised to power 24 kg and the Sun of mass 2 into 10 raised to power 30 kg and the distance between them is 1.5 into 10 raised to power 11 मीटर and the value g is given. तो सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, क्या क्या हमें गिवन है. m1 इज इक्वल टू, m1 हमारे पास है 6 into 10 to the power 24 kg. m2 गिवन है हमारे पास, that is 2 into 10 to the power 30 kg. हमारे पास r गिवन है और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 into 10 to the power 11 मीटर. हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, फोर्स. तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स. नाउ अप्लाई द फार्मूला ऑफ फोर्स. F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ G m1 m2 एंड r स्क्वायर. तो हमारे पास G की वैल्यू है 6.7 into 10 to the power minus k11. Now substitute the value of m1, that is 6 into 10 to the power 24 kg. The value of m2, 2 into 10 to the power 30 kg. And the value of r squared, that is 1.5 into 10 to the power 11. और हमारे पास r स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर लगा देते हैं. नाउ सॉल्व दिस वैल्यू. तो देन हमारे पास जो वैल्यू आती है f इज इक्वल टू 35.7 into 10 to the power 21. 10 to the power 21. अगर हम डेसिमल पॉइंट रिप्लेस करते हैं तो देन वी गेट 3.57 into 10 to the power 22 न्यूटन. दैट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. स्टूडेंट, आज हम आपको एक शीट प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं. कुछ न कुछ क्वेश्चन इस लॉ से बेस्ड हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल अस बिटवीन 1 PM to 4 PM or in working hours. Thank you very much.